Hello students, welcome again in my channel English on your fingertips. Today we are going to explain poem number 3, UP Board class 12th, On His Blindness, composed by John Milton. John Milton was a very extraordinary poet. He composed many of sonnets. This poem is also sonnet, but balki personal sonnet, because this sonnet he composed on his blindness. Milton was born on 1608, and at the age of 44, means in 1652, he became totally blind. He was very sad. In this poem, he expressed his grievedness, his sadness, how he felt when he became blind. So this was the personal sonnet, and I would like to share with you that sonnet is a kind of poem consist only 14 lines. यानी जिस पोएम में केवल 14 ही लाइन होती हैं, उस पोएम को सोनेट कहते हैं. Mainly two kinds. Sonnets are mainly two kinds. Petrarchan sonnet or Italian sonnet. This is Petrarchan or Italian sonnet, and Shakespearean sonnet. Difference is only pattern. In this kind of sonnet, in Italian sonnet, the criterion is first octave means stanza of 8 lines, and then sestet means 6 lines. 1 octave means 8 lines plus 1 sestet means 6 lines, total 14 lines. This is Italian sonnet. Milton wrote most of his sonnet on this pattern, Italian or Petrarchan sonnet. And Shakespearean sonnet are 3 quaternion, means first 4 line, second 4 line, and third 4 line. 4 line, 4 line, 4 line, and then couplet, 14 lines. Shakespearean composed all of his sonnets on this pattern. So this pattern is called Shakespearean sonnet, and Milton composed all of his sonnets on this pattern, 1 octave and 1 sestet. So let us start. On His Blindness. This poem also part of the graduate syllabus of CCS University. John Milton. When I consider, let's start. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide. In the first line, poet says, when I consider how my light is spent. Consider means think, सोचता हूँ, विचार करता हूँ. When I consider, जब मैं सोचता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ, how कैसे my light, light means eyesight. How my light is spent. Spent means finished. When I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई. Airy means before, half my days. Half means आधा. My days means my life. When I consider how my light is spent, airy half my days. जब मैं यह विचार करता हूँ, जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरी नेत्र ज्योति, मेरी आँखों की रोशनी मेरे आधे जीवन से पहले ही कैसे समाप्त हो गई. मैंने बताया ना आपको कि 44 वर्ष की आयु में जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे, उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी. उसी पर अपना दुख प्रकट करते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरे आधे जीवन से पहले मेरी नेत्रों की रोशनी कैसे चली गई,
इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और मुझे इस विस्तृत संसार में अंधकार में छोड़ दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसको ये सारा संसार अंधकार में नजर आता है, और ये संसार बहुत विस्तृत है और नेत्रहीन व्यक्ति के लिए और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पोएट यही कहने की कोशिश करता है कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि मेरी नेत्रों की रोशनी कैसे खर्च हो गई, कैसे समाप्त हो गई मेरे आधे जीवन से पहले ही, और इस विस्तृत संसार में, इस अंधकार में संसार में मुझे छोड़ दिया है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक प्रतिभा जो मेरे पास है। क्या टैलेंट है? व्हाट इज दैट टैलेंट? पोएट रेफर्स हेयर द टैलेंट, एंड दैट टैलेंट वाज कंपोजिंग द पोएम। कविता लिखने का जो उसके पास टैलेंट है, जो प्रतिभा है, विच इज डेट टू हाइड। कोई उसकी आंखों की रोशनी छीन सकता है, किंतु उसकी कंपोजिंग करने की कैपेसिटी को, उसकी कंपोजिंग करने के टैलेंट को केवल कौन छीन सकता है? मृत्यु। तो क्या कहा? एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरी वो प्रतिभा जिसको केवल मृत्यु ही मुझसे छीन सकती है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड मीन्स पड़ी रहेगी, विद मी मेरे साथ, यूजलेस मीन्स बेकार। क्योंकि जब आँखों की रोशनी नहीं है तो कविता लिखने का की जो प्रतिभा है वो बेकार पड़ी रहेगी। थो माई सोल मोर बेंट, थो माने यद्यपि, माई माने मेरी, सोल मीन्स मन, आत्मा, मोर माने और अधिक, बेंट मीन्स उत्सुक है। यद्यपि मेरी आत्मा, मेरा मन और भी अधिक उत्सुक है, क्या करने के लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व की मैं सेवा करूं, देयर विद मीन्स उससे, किससे? उस टैलेंट से। किस टैलेंट से? कंपोजिंग द पोएम। यद्यपि मेरा मन और भी अधिक उत्सुक है कि मैं उस प्रतिभा से माई मेकर एंड प्रेजेंट, टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने क्रिएटर की, अपने बनाने वाले की यानी भगवान की सेवा करूं उससे, एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करूं उसके सामने माई ट्रू अकाउंट, मेरा वास्तविक लेखा जोखा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा पहुंचती है ईश्वर के सामने, तो वहाँ उसका लेखा जोखा रखा जाता है, उसका ट्रू अकाउंट रखा जाता है, माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वर्णन होता है कई बार शास्त्रों में कि मृत्यु के पश्चात हमारा लेखा जोखा, हमने क्या किया, क्या हमें करने के लिए दिया गया था। तो यहाँ पोएट ने उसी चीज़ को किया है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, कि उस टैलेंट से मैं अपने मालिक की, अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना वास्तविक लेखा जोखा उसके सामने रखना चाहता हूँ। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही माने वह, ईश्वर के लिए यूज़ किया गया, भगवान के लिए। रिटर्निंग मीन्स वापसी पर, ही मीन्स मृत्यु के बाद। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड, डांटना। कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद वह मुझे डांटे। क्यों डांटे? कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था। क्या टैलेंट था? कंपोजिंग द पोएम, और तुमने उस टैलेंट को जस्टिफाई नहीं किया, वो टैलेंट तुम्हारे साथ ऐसे ही पड़ा रहा। इसलिए मेरा मन चाहता है कि मैं अधिक से अधिक कविता लिख करके अपने ईश्वर की सेवा करूं और अपना वास्तविक लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मृत्यु के पश्चात ईश्वर मुझे डांटे कि तुमने अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया है। नाउ लेट अस सी स्टैंजा सेकंड। लेट अस सी सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब पोएट क्या कहता है? डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर। डोथ क्या? गॉड, ईश्वर, एग्जैक्ट डे लेबर, मुझसे सारे दिन मेहनत कराना चाहता है, पूरे दिन परिश्रम करना चाहता है। लाइट डिनाइड, और मेरी आंखों की रोशनी को समाप्त कर दिया, मना कर दिया, छीन ली मुझसे। आई फॉन्डली आस्क्ड, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रश्न करता हूँ। क्या कहता है पोएट? डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क्ड, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से क्वेश्चन करता हूँ, प्रश्न करता हूँ भगवान से कि क्या भगवान मुझसे दिन रात परिश्रम कराना चाहता है, जबकि उसने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी को छीन लिया है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस पोएम में पोएट की अपना दुख होता है, उसको लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ बुरा किया है, अन्याय किया है। तो यहाँ तक वो अपनी ग्रीवनेस, अपना ग्रीफ, अपनी सैडनेस,
प्रकट करता है और अब उसको कंसोलेशन मिलना शुरू होता है, अपने अंदर से उसको ढांढस मिलना शुरू हो जाता है, उसको सांत्वना मिलनी शुरू हो जाती है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से प्रश्न करता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट पेशेंस, लेकिन मेरा पेशेंस, मेरा धैर्य, टू प्रिवेंट, मुझे रोकता है क्या करने से, कि भगवान से प्रश्न कर रहे हो तुम, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान कुछ भी गलत नहीं करता, जो करता है वो अच्छा करता है। तो अब उसका पेशेंस उसको प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है भगवान से प्रश्न करने से। मीन्स सेल्फ मोटिवेशन आ रहा है, उसको अपने अंदर से ही तसल्ली मिल रही है, अंदर से ही उसको कंसोलेशन प्राप्त हो रहा है। इस लाइन में देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, उसका धैर्य उसको रोकता है। इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस प्रिवेंट करता है। इस लाइन में पेशेंस को पर्सोनिफाइड किया गया है, पेशेंस प्रिवेंट करता है, यानी पेशेंस को ह्यूमन बीइंग मान लिया गया है कि वो रोक रहा है उसको, नहीं नहीं ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, ऐसा मूर्खतापूर्ण ढंग से आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, फिर से पर्सोनिफिकेशन, दैट मर्मर शिकायत, सून रिप्लाइज, और फिर शिकायत शीघ्रता से उत्तर देती है। अब तक जो शिकायत थी उसको, वो शिकायत उसको उत्तर देती है। मीन्स शिकायत को फिर से यहाँ पर्सन मान लिया गया है, तो फिर से पर्सोनिफाइड, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड किसको किया गया, पेशेंस को। बट मर्मर, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है मर्मर को। क्या रिप्लाइज करती है मर्मर, गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, डोथ नॉट नीड, दोनों की आवश्यकता नहीं होती, आइदर मैन्स वर्क, न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता होती है, और हिज आउन गिफ्ट्स, और ना ही अपने तोहफे, अपने उपहारों की आवश्यकता होती है। पेशेंस प्रिवेंट करता है, मर्मर पोएट को रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है, कि ईश्वर को दोनों में से किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, ना तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता होती है और ना ही अपने उपहारों की आवश्यकता होती है। क्या कहता है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु माने जो, बेस्ट माने सर्वोत्तम ढंग से, बियर मीन्स सहन करता है, हिज माने उसके, किसके, ईश्वर के दिए हुए, माइल्ड योक, माइल्ड योक मीन्स होती है जो हमें दुख, जो हमें सफरिंग्स जीवन में प्राप्त होती हैं, वो किसकी दी हुई है, वो गॉड की दी हुई है। तो यहाँ उसकी जो मर्मर है उसे रिप्लाई करती है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के दिए गए सफरिंग्स को बेहतर ढंग से सहन करता है, टॉलरेट करता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। क्यों, यहाँ पोएट का मानना ये है कि गॉड किसी भी पर्सन को, किसी भी मनुष्य को यदि उसकी लाइफ में सफरिंग देता है और हम बिना शिकायत करे, बिना कंप्लेन किए उस सफरिंग को पेशेंस से बियर करते हैं, तो हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पोएट का ऐसा मानना है। क्यों, क्योंकि परेशानियाँ किसने दी हैं, ईश्वर ने। और पोएट यहाँ मानता है कि परेशानी ईश्वर जो देता है वो सिर्फ किस लिए देता है, मनुष्य के पेशेंस को टेस्ट करने के लिए, कि मनुष्य के अंदर कितना धैर्य है। तो मनुष्य को के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ही उसको सफरिंग्स देता है। तो जो ईश्वर की दिए गए सफरिंग्स को सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं, वो ही उसकी सेवा करते हैं। इसलिए पोएट को कंसोलेशन मिलता है कि ईश्वर ने जो उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है, उस पर कंप्लेन नहीं करनी है, बल्कि उसको सहन करना है, और वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। यदि तुम उस सफरिंग को सहन करोगे तो वही सच्ची सेवा है, वही ईश्वर की पूजा है। शिकायत करने से कोई भी लाभ नहीं है। फिर से देखें, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ कि क्या ईश्वर मुझसे पूरे दिन परिश्रम कराना चाहता है, जबकि मेरी आंखों की रोशनी को उसने छीन लिया है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा धैर्य मुझे ऐसा करने से रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और फिर शिकायत शीघ्रता से उत्तर देती है। गॉड डोथ नॉट नीड, ईश्वर को दोनों की ही जरूरत नहीं होती, आइदर मैन्स वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स, ना तो मनुष्य की सेवा की आवश्यकता होती है और ना ही अपने उपहार या तोहफों की उसे आवश्यकता होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट,
जो ईश्वर के दिए गए सफरिंग्स को सर्वोत्तम तरीके से सहन करते हैं, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा होती है, वही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। लेट अस सी स्टैंडा 3 और लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सी थर्ड स्टैंजा of the poem. In third stanza, poet describe the real situation, real position, real state of the God. He say, his state is kingly. His state, उसकी अवस्था is kingly, राजाओं जैसी है। किसकी? भगवान की। पिछले stanza में आया था ना, मर्मर soon replies, कि उसको आवश्यकता नहीं होती ना तो ईश्वर की सेवा की और ना ही अपने उपहारों की। तो अब क्या कंसोलेशन मिलता है पोएट को? हिज स्टेट इज किंगली, उसकी अवस्था तो राजाओं जैसी है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 माने हजारों सेवक, 1000 ऑफ एंजल्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके एक ही आदेश पर, स्पीड बहुत तेजी से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए लैंड एंड ओशियन, पोस्ट ओवर तेजी से विचरते फिरते हैं, तेजी से कार्य करते फिरते हैं, पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी। उसके एक आदेश पर हजारों देवदूत पृथ्वी पर और समुद्र पर बिना विश्राम किए विचरते फिरते हैं। उसकी एक आज्ञा यदि मिलती है तो हजारों देवदूत तैयार होते हैं। उसकी अवस्थाओं तो राजा जैसी है। उसको कहाँ आवश्यकता है कि पोएट जॉन मिल्टन उसकी सेवा करे, क्योंकि उसकी सेवा करने के लिए तो हजारों देवदूत हैं जो उसके एक आदेश पर बहुत तेजी से बिना विश्राम किए हुए जल और थल दोनों पर विचरते फिरते हैं। और फिर क्या कहता? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी उसकी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े हुए हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनको आदेश दिया जाए अपनी सेवा करने का। तो इस लास्ट स्टैंजा में गॉड की सिचुएशन, गॉड की पोजीशन को बताया गया है कि गॉड की अवस्था राजाओं जैसी है। उसको ज़रूरत नहीं है कि एक मिल्टन या एक कोई पर्टिकुलर पर्सन उसकी कोई सेवा करे। उसकी सेवा करने के लिए तो हजारों देवदूत हैं। राजाओं जैसी स्थिति है, अवस्था है उसकी। हजारों देवदूत तैयार रहते हैं और वो भी जो खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनको कोई आदेश दिया जाए सेवा करने का, उनको अवसर प्राप्त हो और वो सेवा करें। तो उनकी अवस्था तो ईश्वर की अवस्था तो राजाओं जैसी है। इसलिए लास्ट में आकर के उसको फुल्ली कंसोलेशन मिलता है। आई होप आपकी समझ आया होगा। आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।